Good afternoon, student. My name is Samir Sarkar. So now today we are going to learn the properties of rational numbers, as we already discussed about the rational numbers in my previous session. Okay. So now we are going to discuss about the properties of rational numbers, and these are the properties of rational numbers. The first one is closure property. Second one is commutative property. Third, associative property, and the last one is distributive property. So now let's do with this. Okay, let's start. So the first one is closure property. What do you mean by the closure property? ठीक है, देखते हैं closure property आखिर ये होती क्या है. ठीक है, as we are doing the rational numbers, okay, so we can take the rational numbers only. As we know that 2, 3, these all are rational numbers. Negative infinity to positive infinity, that all are rational numbers, because we can also write it 2 by 1, that is a p by q form. Okay, so this one. So now the next one is closure property. So let's start. The closure property is, if as we are doing the rational numbers, so we have to take a by b. Okay, this is a rational form, p by q, and c by d. If a by b and c by d are rational numbers, then their sum is also a rational number. Then their sum is also rational. Number. Their sum is also rational number. Okay? जैसे कि a by b, जैसे हम लोग अभी पिछले वाले सेशन में पढ़े थे कि a by b जो होता है ये आपका क्या है, रैशनल नंबर में होता है, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है, और c by d जो है ये भी p by q के फॉर्म में है. तो जब हम लोग एक रैशनल नंबर्स को दूसरे रैशनल नंबर्स के साथ जब जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब इसको ऐड करते हैं, तब क्या होता है, ये जो है, ये जो निकलेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा. ठीक है, जो दूसरा वाला होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा. ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड. लेट्स डू सम एग्जाम्पल. Suppose if a by b value is suppose 2 by 3, ठीक है, और c by d का जो वैल्यू है वो ले लेते हैं हम लोग 1 by और वेट 5 by 3. First you check that both are rational numbers. Yes, 2 by 3 is in the form of p by q and 5 by 3 is also in the form of p by q. तो आप इन दोनों को ऐड करके देखो. दिस इज एन एग्जाम्पल. 2 by 3 प्लस 5 by 3 कितना आ गया, 7 by 3. तो 7 by 3 is also a rational number. Okay, is also a rational number. तो इस चीजों को हमेशा याद रखिएगा. तो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी. और इन शॉर्ट यू कैन से दैट द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज गिव्स अ रैशनल नंबर. मतलब जब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू आती है एक रैशनल नंबर ही. ठीक है, एक रैशनल नंबर ही उसकी वैल्यू आती है. तो ये चीज हम लोग का कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड commutative property.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका भी बिल्कुल सेम होता है। इफ a by b and c by d are rational numbers, ठीक है, and a by b and c by d are rational numbers, then क्या हो जाएगा, a by b plus c by d is equal to c by d plus a by b। तो ये कहलाता है बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। ये तो देखिए a by b मतलब ये पहला वाला रैशनल नंबर जब हम ऐड करते हैं दूसरे वाले रैशनल नंबर के साथ, या फिर दूसरे वाले रैशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं पहले वाले के साथ, वो दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे a by b, c by d, e by f ये सारी चीजें जो है ये आपके रैशनल नंबर्स नोट करते हैं। जैसे a by b जो है ये p by q के फॉर्म में है, इट्स अ रैशनल नंबर। c by d इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि ये सेम वही चीज है, a by b प्लस c by d। अब इसी का ऑर्डर बदल देते हैं हम लोग, c by d प्लस a by b, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे 2 by मतलब मान लेते हैं, छोटा सा लेके चलते हैं, 2 plus 3 is equal to 3 plus 2, हाँ दोनों इक्वल है। 2 plus 3 कितना होता है 5 and 3 plus 2 कितना होता है 5, both are equal। So let's prove whether this formula is correct or not by taking one simple example, okay। Example. Suppose if I am taking this a by b value 3 by 5 and another one, suppose c by d value 4 by 5. Okay, why I am taking this denominator same? Because it will help to complete or understand well. Okay, so now listen. So here I am taking a by b value is 3 by 5, which is in the form, which is a rational number, p by q form. C and d, c by d is 4 by 5. It's also in the form of rational number. So क्या था पहला, 3 by 5 plus 4 by 5। ये दो रैशनल नंबर्स क्या इक्वल होंगे अगर हम इसका ऑर्डर बदल देते हैं। देखिए 3 by 5 plus 4 by 5, अब इसका ऑर्डर बदल दिया 4 by 5 plus 3 by 5। So now check whether after changing its order, check whether it will give the same answer। check, चलो देख लेते हैं कितना आएगा। 5 LCM 3 plus 4 is 7 and here 4 plus 3 is 7 by 5। yes, ये दोनों ही इक्वल हैं, जिसका मतलब वो जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा था कम्यूटेटिव के ऊपर। बट दिस ऑल आर दिस क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इसमें सबसे मेन है वो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट टाइम पे चेंज होते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है मैं जिससे बता रहा हूं वो है ओवर एडिशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्योंकि हम लोग यहां पे हमेशा ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसके कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। So these four are called operations. So these operations are very important. So here I am doing only one operation, that is addition, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही ऑपरेशन यूज कर रहा हूं जो कि एडिशन है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है
मल्टीप्लिकेशन भी करना है एज वेल एज डिवीजन भी करना है, ठीक है। मैं यहां पे एडिशन का दिखा रहा हूं। सो दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। द फर्स्ट वन, द प्रीवियस वन वाज क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये सारी की सारी चीजें एडिशन के ऊपर दिए हुए हैं। तो ये हुआ आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये थर्ड प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो नाउ लेट्स चेक व्हाट इज एसोसिएटिव। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज। इफ three rational numbers, that means a by b, comma c by d, उसके बाद क्या आएगा a b c d, then the next one and e by f are rational numbers। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों अगर रैशनल नंबर्स हुए then तब क्या होंगे? If three of them are rational numbers, then according to the formula क्या होगा? a by b, पहले आप इसको लिख लें, a by b plus c by d plus e by f। ये ओवर एडिशन चल रहा है, इस ओवर एडिशन is equal to a by b, इसको भी बिल्कुल सेम लिख दें, प्लस e by f। तो आप तो बोलेंगे क्या ये दोनों तो इक्वल है, बट नो। इसमें हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट, इन द फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड you take this c and d in one bracket, and the second part take this first and second in the one bracket. Now this is your formula. Okay, अब इसको चेक करना है whether this formula is correct or not. Same method, पहले हम लोग जैसा लेते थे a by b का कुछ वैल्यू लेंगे, c by d का वैल्यू लेंगे and e by f का भी वैल्यू लेंगे, and substitute that value in this equation on this formula, you will get the answer. Okay, so चलिए देखते हैं। Let's take one example. देखते हैं ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। So a by b take, okay, 2 by 3, c by d, these are the values। मतलब ये वैल्यूज हैं, कुछ संख्या है जिसको कि हम लोग लेके कर रहे हैं, 4 by 3, and e by f take 5 by 3। अब हम लोग का मेन काम क्या है? इन सभी को सब्स्टिट्यूट करना। So substitute the values. So I am doing the directly. Okay, 2 by 3 plus 4 by 3 plus 5 by 3। पहले मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, 2 by 3 plus 4 by 3 plus 5 by 3। So now look, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, अब हम लोग क्या बताए थे? पहले के दो पार्ट, लास्ट के दो पार्ट एक साथ, और ये पहले के दो पार्ट एक साथ। So now you check and according to the board mass, okay, we always use board mass। So according to the board mass, जो अभी इसको कहा जाता है V board mass, V board mass, ठीक है। V for vinculum, जिसको कभी ये नया चीज ऐड हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं बार। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 का बार, इसको बार कहा जाता है। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड 3 बार? बिकॉज दिस सेम नंबर, दिस 3 इज रिपीटिंग टू इनफिनिट टाइम्स। ठीक है, ये चलता ही जाएगा। इसको हम लोग हटा के क्या लिख सकते हैं? 3 3 3 डॉट डॉट। इसको विनिकुलम कहते हैं। B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. So as we are doing
as we see this kind of question, so we always have to solve the bracket portion. ठीक है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करिए. ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला क्या है, इसको आप वैसे का वैसे ही छोड़ दें, प्लस इसको पहले सॉल्व करते हैं. इसका कितना आएगा, 5 and 4 9, बिकॉज द डिनोमिनेटर पार्ट इज सेम, इज इक्वल. सो नाउ हियर आल्सो 3 4 and 2 6 प्लस 5/3. अब इसको आप जानते ही हैं कैसे सॉल्व करना पड़ता है. कैसे सॉल्व करना पड़ता है आपको पता ही है. ठीक है, तो देखते हैं. अब इसका क्या आएगा, 3 9 and 2 11. ठीक है, 9 and 2 11 इज इक्वल्स टू, क्या ये इसके इक्वल होगा? हाँ, इट मीन दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, ये आपका जो फॉर्मूला जो है वो 100% करेक्ट. ओके, सो नाउ लिसन. Now the last property is your distributive property. Okay. Distributive property. So according to the distributive property, ये सारी की सारी चीजें एक ही है. If a by b, c by d and e by f are rational numbers, then a by b जो होगा multiply in bracket, इसको रखेंगे c by d plus e by f is equal to a by b into c by d plus एक बार इसके साथ, again you have to multiply the same number with this one, so a by b into e by f. Okay, so this is your formula. First a by b is multiplied with c by d, then this a by b again is multiplied with e by f. ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई भी एक चीज इसको हम ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो गया. सो नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. ओके, नाउ लुक, a by b value is 2/3, c by d value, suppose take different value 1/2. Okay, and e by f value 4/3. So now this one is a by b, so first you write a by b multiplied c by d, that means 1/2 plus 4/3. अब इसको आप करके देखिए कि ये दोनों ही क्या इक्वल आते हैं. पहला इसका इसके साथ 2 into 3 into 1/2 प्लस का साइन है बीच में, प्लस 2/3 into 4/3, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था. ओके, सेम मेथड यू हैव टू यूज. नाउ चेक वेदर इट विल गिव द करेक्ट आंसर और नॉट. ओके, so first according to the board mass, first you have to solve the internal part, मतलब अंदर वाले को. ये भी प्राइम नंबर है, ये भी 3 is also a prime number, इसको सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 3s are 6. अब ये कितना आएगा, 3 plus 8. ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद ही जानते हैं. नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन. देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो 2 into 1 2 by 3 2s are 6. Here 2 4s are 8 by 3 3s are 9. अब हम देखते हैं इसको करके. 2/3
इनटू 8 प्लस 3 कितना होता है? 8 प्लस 3 11/6। और ये हो गया, ये देखिए इन दोनों का बेस सेम नहीं है, इन दोनों का बेस सेम नहीं है, तो दैट मीन ये 6 और 9 में क्या हो जाएगा? हाँ 9 होगा एलसीएम। तो अब देखते हैं 6 हाउ मेनी टाइम? नहीं 9 नहीं होगा, क्या होगा? हम इसको डैश कर देते हैं। 6 9 जा 54, सब 2 9 जा 18 प्लस 6 8 जा 48। सॉल्व करते हैं, ये कटेगा किसी से? हाँ, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं? 2 under 2 2 3 जा 6, कितना आ गया? 11/9 इक्वल्स टू ये कितना आएगा? 8 and 8 16, 1 carry 5 and 1 6, 66/54। अब कर लेते हैं, किससे काटेंगे? 3 से काटे कि 6 से काटे? यस 6 से काटते हैं। 6 1 6 6 1 6 6 9 54। सो हियर यू कैन सी बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल 100% करेक्ट था। ठीक है, ये देखिए, अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, whether check 0 is a rational number or irrational, sorry rational number, yes or no? एक छोटा सा, whether check that 0 is a rational number, 0 is a rational number. 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number. Why? Because 0 is a rational number. Because we can write 0 as 0/1. So 0/1, because the denominator part is not 0, that means this one is can exist. 0 is a rational number. Okay? So आप इसी को ध्यान से देखिएगा और इस पर कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, और बाकी के जो भी डाउट होंगे आप इसको देख सकते हैं, बाकी के बुक भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। ओके।